Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss a very important topic. In this video I'm going to show you how to use verb go. Go is a very common verb in English and it has many uses, and sometimes it's become more complicated when we have to use to, on, for, to the. That makes confuse कि हम कब इसके साथ कौन सा preposition यूज़ करेंगे, और इस तरीके से हमारा या तो सेंटेंस ख़राब हो जाता है अगर हम रॉन्ग यूज़ कर देते हैं, या सेंटेंस के मीनिंग में चेंजेस आ जाते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न that how to use go, and in different sentences with different meanings, where do we have to use go to, go on, go for, go to the, and go to are. So in this video, I have discussed all the things in detail. I have discussed with the meanings, with sentences for your convenience. So I hope that after watching this video, the problem of go and uh, it will become more easy to understand and make sentences by using go. Now here are the list of the collocations, that how many words are being used with go. The collocation with go यानी कि हम कौन से sentences में सिर्फ go यूज़ करते हैं, उसके साथ आगे कुछ भी नहीं लगाते हैं. Second, collocations with go to. ऐसे कौन से वर्ड हैं जब हम वो sentences में यूज़ करते हैं तो हमें go to यूज़ करना पड़ता है. The third one is collocations with go to a. ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जब वो आ जाएं तो हमें गो टू के बाद आ यूज़ करना पड़ता है. एंड द कॉलोकेशंस विद गो टू द. ठीक है, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जब वो आएंगे तो आपने गो टू द यूज़ करना पड़ेगा. कॉलोकेशंस विद गो ऑन. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जब वो सेंटेंसेस में आते हैं तो आपने गो के साथ ऑन यूज़ करना पड़ता है. और हम यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि हम सम टाइम गो ऑन की जगह पे गो टू यूज़ कर देते हैं, गो फॉर यूज़ कर देते हैं. द लास्ट वन इज़ गो फॉर. सेम एज देर आर सम डिफरेंट वर्ड्स व्हेन दे आर इन द सेंटेंस वी हैव टू यूज़ गो फॉर. नाउ द फर्स्ट यूज़ ऑफ द गो कॉलोकेशंस विद गो. अगर आपके पास ये वर्ड्स आते हैं गो के बाद, तब आपने गो के साथ कोई एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ नहीं करना है, सिंपल गो यूज़ करना है. गो ग्रीन, go blind, go there, go away, go figure, go deaf, go abroad, go online, go west, go straight on, go right, go mad, go home, go downtown. Alright, when you have these words after go, then you don't need to use any to, for, on. Directly use these words after go. Go green, go online, go home. ठीक है? Now look at some examples. The first example is that उन्हें नौकरी के लिए बाहर मुल्क जाना है. They have to go abroad for job. They have to go abroad. Go abroad. देखें, go abroad के दरमियान में किसी किस्म का to, for, and कुछ यूज़ नहीं हुआ है. So when you have a word abroad in a sentence, you just make go abroad. They have to go abroad for job. I need to go abroad. My friend has to go abroad for meeting her relatives, like this. The second example is that I'll just go online and check my Facebook notification. मुझे online होकर अपने Facebook के notifications देखने हैं. तो go online. It's very simple. I'll just go online to check my notifications. The third example is that I go home after my work. मैं अपने काम के बाद घर जाती हूँ. It's simple. Like after completing my work, I never go here and there. I just go straight and I just go back to my home. Now, I go home after my work. Second is, we went to Islamabad on vacations last year. हम last year vacation में इस्लामाबाद गए थे. We go there every year. Go there. We go there every year. हम हर साल वहाँ जाते हैं. So go there means you do not need to use any kind of other word like to, for, in. Go there. Like if I say to you, please go there and bring water for me. वहाँ जाइए और मेरे लिए पानी लाइए. Please go there and complete your work.
वहाँ जाइए और अपना काम कीजिए. Alright? Now another example is that you really bother me, go away. तुम मुझे बहुत बेजार करते हो. Go away. You really annoy me. Go away. Alright? The next example is, can you tell me this address? क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकती हैं? Yeah. Just go right and turn left. बिल्कुल. आप सीधे जाइए, left turn लीजिए, and there is a right spot. What you are going to find? So this is very easy to say. Go right and do your work. Go away. I don't want to see your face. So these words, when you have in your sentence like away and right, you just write a go. Okay, go away, go right, go abroad, go online. Now the second use, go with gerund. Alright, we have some verbs, and when we have these verbs after go, we have to use the gerund form of the verb. अगर go के बाद ये सारे verbs आ जाते हैं तो आपने base form of verb इस्तेमाल नहीं करनी है, आपने gerund यानी ing form of the verb इस्तेमाल करनी है. जैसे go skiing, go jogging, go shopping, go running, go hiking, go bowling, go dancing, go camping, go sightseeing, and go swimming. तो जब आपके पास ये वर्ब्स हैं सेंटेंस में तो आपने go के साथ इन वर्ब्स की ing फॉर्म यूज़ करनी है. Now look at some examples. I love to go skiing with my friends. मुझे अपने दोस्तों के साथ स्कीइंग पर जाना अच्छा लगता है, या मैं जाता हूँ, या मुझे बहुत पसंद है. My friends and I like to go shopping on Sunday because the prices are very normal at Sunday market. मैं और मेरे दोस्तों को इतवार बाज़ार जाना या इतवार के दिन शॉपिंग करना पसंद है क्योंकि उस दिन कीमतों में काफ़ी कमी होती है. So this is the special offer of Sunday market. So that's why we go shopping on Sunday. So when you are using skiing and shopping with go, so you have to use ing form of these verb. We are going hiking this weekend. हम इस हफ्ते हाइकिंग के लिए जा रहे हैं. डू यू वॉन्ट टू कम? क्या आप आना पसंद करेंगे? नेक्स्ट इज माई फादर गोज जॉगिंग एवरी मॉर्निंग. मेरे फादर हर सुबह जॉगिंग के लिए जाते हैं. सो व्हेन यू हैव अ वर्ब jogging with go, you will use ing form of jogging. My father goes jogging every morning. My friend goes jogging every morning. I like to go jogging every evening. The next one is Hassan likes to go swimming. हसन को स्विमिंग करना अच्छा लगता है, स्विमिंग पर जाना पसंद है. He always says, वो हमेशा कहता है, that swimming is a very good exercise that makes you fit. स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपको ये चुस्त रखती है, एक्टिव रखती है, फिट रखती है फिजिकली. सो यू नो व्हेन यू हैव अ वर्ब swim, you will use with go swimming. I like to go swimming. Children like to go swimming. Children love to go swimming. तो जब आप go के साथ swim यूज़ करेंगे तो do not use swim, use swimming. And be careful for this word. ठीक है, all right. तो आप अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं और इन वर्ड्स को अच्छे से मेमोराइज कर लेते हैं या अंडरस्टैंड कर लेते हैं, सो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू मेक सेंटेंसेस विद गो एंड ट्राई टू मेक सेंटेंसेस योर ओन. जब आप खुद से सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपके माइंड में वर्ड फिक्स हो जाएंगे. एंड व्हेन यू हैव टू स्पीक एंड व्हेन यू हैव टू राइट गो in your sentences, so you will not make any mistake. Now look at the next. Now the third use of go, collocation with go to. This is very important, go to. Now look at these words. When you have word, you have to use go to. Go to work, go to class, go to college, go to school, go to jail, go to dinner, go to कराची लाहौर. मीन्स अगर आपके पास किसी शहर का नाम है तो आपने गो टू के बाद उस सिटी का नाम यूज़ करना है. गो टू पाकिस्तान, कंट्री नेम के लिए भी आपने गो टू यूज़ करना है. गो टू एशिया, यूरोप, अगर कॉन्टिनेंट्स नेम आ जाते हैं तब भी हमने गो टू यूज़ करना है. गो टू बेड, गो टू स्लीप, गो टू यूनिवर्सिटी, गो टू प्रिजन, कैद खाने के लिए. गो टू हेल, जब आप गुस्से में होते हैं तो अक्सर हम कहते हैं ना
आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, गो टू हेल। तो अगर आपके पास ये लिस्ट आ जाए वर्ड्स की, तब आपने इसके साथ गो टू यूज़ करना है। गो फॉर, गो ऑन या सिंपल गो यूज़ नहीं होगा। तो रिमेंबर दिस वर्ड। नाउ लुक एट सम एग्जांपल्स। आई हैव टू गो टू वर्क टुमारो, सो आई नीड टू स्लीप अर्ली। कल सुबह मुझे जल्दी जाना है ऑफिस, सो मैं सोना चाहता हूँ या मुझे सुबह जल्दी जाने की वजह से जल्दी सोना है। गो टू वर्क। आई वॉन्ट टू गो टू कॉलेज टू मीट माई टीचर। मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ अपनी टीचर से मिलने के लिए। या आप ये भी कह सकते हैं कि आई वॉन्ट टू गो टू कॉलेज टू सबमिट माई एग्जामिनेशन फॉर्म। ऑलराइट, गो टू वर्क, गो टू कॉलेज, गो टू यूनिवर्सिटी। सो तो अगर आपके पास ये वर्ड हैं तो प्लीज़ यूज़ गो टू। नाउ लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। आर यू फ्री? Yeah, so let's go to dinner. क्या फ्री हैं? बिल्कुल, चलो अब खाना खाने चलते हैं। Are you free? Yeah. Next sentence is, you have made my work worse. Go to hell. You have made my day worse. Go to hell. तुमने मेरा दिन ख़राब कर दिया है, जहन्नुम में जाओ। Okay? You have made my life worse. Go to hell. तो जब somebody teased you a lot, somebody bother you a lot, and you don't want to see that person, so you can say go to hell. तो go to hell आप तब यूज़ करेंगे जब कोई आपको बहुत परेशान कर दे, आपको बहुत तंग कर दे, and you don't want to see that person again. So in anger you will use go to hell. I am going to Karachi to attend my cousin's wedding. मैं अपनी कज़न की शादी अटेंड करने के लिए कराची जा रही हूँ। सो फॉर सिटी नेम, आई एम गोइंग टू कराची, आई एम गोइंग टू लाहौर, आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद। नेक्स्ट इज़, आई वॉन्ट टू गो टू लाहौर टू मीट माई फ्रेंड। मैं लाहौर जाना चाहती हूँ अपने दोस्त से मिलने। आई वॉन्ट टू गो टू लाहौर, आई वॉन्ट टू गो टू मरी टू विजिट द ब्यूटिफुल प्लेसेस ऑफ मरी। I want to go to Mari to enjoy the beautiful weather. So when you have to use city and country name, you will use go to Mari, go to Lahore, go to Pakistan, go to China, in that sense, okay? Now the next use of go, collocation with go to a. अब हमारे पास ऐसे कौन से words हैं जिनमें हमें go to के बाद a भी use करना पड़ेगा? So look at these words. Go to a meeting. ऑलराइट, जब आपके पास वर्ड मीटिंग है, आपको मीटिंग अटेंड करनी है, मीटिंग में जाना है, तो आप कहेंगे गो टू अ मीटिंग, गो टू अ कॉन्फ्रेंस, गो टू अ कंसर्ट, गो टू अ पार्टी, गो टू अ रेस्टोरेंट। यानी ऐसी जगह जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हों, काफ़ी सारे लोग हो, गेट टुगेदर्स हो, या ऑफिशियल हो, या फॉर एंटरटेनमेंट हो, या फॉर द सेक ऑफ एन्जॉयमेंट हो। जब आप किसी ऐसी प्लेस पर जाने का जिक्र करेंगे तब आपने टू के बाद आ यूज़ करना है, ठीक है? गो टू अ मीटिंग। नाउ लुक एट सम एग्जांपल्स। यूजुअली आई गेट फ्री ऑन संडे और सैटरडे नाइट, सो आई गो टू अ कंसर्ट विद माई फ्रेंड्स। ज़्यादातर मैं सैटरडे नाइट या संडे नाइट को ही फ्री होता हूँ और फिर मैं अपने दोस्तों के साथ कंसर्ट में चला जाता हूँ, बिकॉज़ आई लव म्यूज़िक, आई लव टू हियर म्यूज़िक। तो गो टू अ कंसर्ट, पब्लिक प्लेस पर जाने के लिए जहाँ बहुत सारे लोगों की गैदरिंग हो, आप गो टू आ यूज़ करेंगे। रिमेंबर, गो टू आ कंसर्ट, गो टू आ रेस्टोरेंट, गो टू आ मीटिंग। अब मीटिंग में भी काफ़ी सारे लोग होते हैं, लेकिन ये पब्लिक प्लेस नहीं होती है, यहाँ पर ऑफिशियली कोई टॉपिक डिस्कस किया जा रहा होता है। माई सिस्टर आस्क्ड मी, मेरी सिस्टर ने मुझसे पूछा, इफ़ आई वॉन्ट टू गो टू अ पार्टी विद हर, एंड आई सेड टू हर यस। तो मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि आप मेरे साथ पार्टी पे चलते हो या चलोगी, तो मैंने कह दिया यस ऑफ कोर्स आई वांट टू गो। सो द पार्टी इज़ अ प्लेस और where we lots of people gather for the sake of enjoyment and merry making. So party, get together, we use go to a party. If you want to go restaurant, so you use I want to go to a restaurant with you. I go to a restaurant every weekend to eat fast food because I love fast food, but every day I cannot eat it. So usually I go to a restaurant every weekend. मुझे फ़ास्ट फूड पसंद है लेकिन आई कैन नॉट गो डेली, तो मैं हर वीकेंड पर रेस्टोरेंट जाती हूँ और जाता हूँ वहाँ पर अपना फेवरेट फ़ास्ट फूड एंजॉय करता हूँ। सो द नेक्स्ट इज़, आई हैव टू गो टू अ मीटिंग विद माई बॉस।
means that whenever there is a meeting in office, inside the office and outside the office, so that's my job, that's my duty, and I have to go to a meeting with my boss. तो मुझे अपने बॉस के साथ मीटिंग में जाना पड़ता है, either the meeting inside the office or outside the office. So go to a meeting, go to a concert, go to a restaurant, go to a party. All right, remember these words. Now the next use of go is collocation with go to the. अब हमारे पास ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनके साथ हम द यूज़ करेंगे? So now look at the list. Go to the doctor, go to the post office, go to the hospital, go to the dentist, go to the zoo, go to the moon, go to the gym, go to the lake, go to the beach, go to the mountains, go to the park, go to the train station, go to the airport, go to the mall, go to the supermarket, and the last word is go to the bank. So remember these words, these places when you have and you have to go there, so you will use go to the. Now look at the example. Whenever there is a horror movie in cinema, I go to the movie with my husband. जब भी सिनेमा में मूवी लगती है, स्पेशली हॉरर मूवी लगती है, सो आई लाइक टू गो टू द मूवी विद माई हस्बैंड. तो मैं अपने हस्बैंड के साथ मूवी पर जाना पसंद करती हूँ. आई एम गोइंग टू द डॉक्टर बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल. मैं जो डॉक्टर की तरफ जा रही हूँ बिकॉज मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ. इंटरनली आई एम फीलिंग सिक, आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग अपसेट, सो आई एम गोइंग टू द डॉक्टर. यू नीड टू गो टू द जिम बिकॉज यू आर गेटिंग फैट डे बाय डे. आपको जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत है क्योंकि आप मोटे हो रहे हैं. यू नीड गो टू द जिम फॉर एक्सरसाइज. आपको एक्सरसाइज के लिए जिम जाने की ज़रूरत है. आई हैव टू गो टू द एयरपोर्ट टू रिसीव माई बॉस. मुझे एयरपोर्ट जाना है अपने बॉस को रिसीव करने के लिए. आई हैव टू गो टू द एयरपोर्ट टू रिसीव माई आंटी, शी इज़ कमिंग फ्रॉम अमेरिका. तो मुझे अपनी आंटी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाना है बिकॉज शी इज़ कमिंग फ्रॉम अमेरिका. सो गो टू द एयरपोर्ट, गो टू द जिम, go to the doctor, go to the cinema, go to the movie. These type of words remember always. These are not so difficult. इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप इसे अपनी प्रैक्टिस में ले आओ. अगर आप रोज़ाना दो तीन सेंटेंसेस डिफरेंटली बनाओ और फिर उसको बोलो, लिखो, तो आप बहुत जल्दी इन तमाम वर्ड्स को, इन तमाम यूजेस को अपनी लाइफ में बिल्कुल जो है ना इनकलकेट कर लेंगे. We need to go to the supermarket because monthly grocery has finished. मंथली ग्रॉसरी ख़त्म हो गई है घर में, तो हमें सुपरमार्केट जाना है. गो टू द सुपरमार्केट. ऑलराइट, तो अब देखें ये तो बहुत कॉमन से वर्ड्स हैं, डॉक्टर का, सुपरमार्केट, बैंक. और जब आप मॉल जाना है तो ये तो आप ऑलरेडी यूज़ करते ही हो. तो जब आप ये यूज़ कर रहे हो तो ट्राई टू मेक सेंटेंसेस विद गो टू द. तो ये अच्छे से आपके लाइफ के साथ अटैच हो जाएंगे. द नेक्स्ट यूज़ इज़ गो. collocation, go with, go on. collocation with go on. go on हम कैसे यूज़ करेंगे? go on a vacation, go on a tour, go on a trip, go on a cruise, go on a safari, go on an adventure, go on holiday, go on a date, go on a picnic, go on a strike. देखिए यहाँ on a के साथ ज़्यादातर adventurous, entertainment, fun, picnic इस टाइप के वर्ड्स आ रहे हैं जहाँ आप अपनी पर्सनल लाइफ इंजॉय करेंगे. वर्क से रिलेटेड या क्राउड से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो इट इज़ ईजी टू रिमेंबर. नाउ लुक एट द एग्जांपल. माय मैनेजर इज़ गोइंग ऑन अ वेकेशन नेक्स्ट वीक. ठीक है, मेरे जो मैनेजर हैं वो छुट्टियों पर जा रहे हैं अगले हफ्ते. गोइंग ऑन अ वेकेशन. वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप और अ टूर ऑफ नारायण एंड कागान. हम नारायण कागान घूमने जा रहे हैं because I have vacation and I am fun loving. I want to visit. So we are going on a trip of Naran and Kagan. Our school is going on a picnic next week. हमारा स्कूल नेक्स्ट वीक पिकनिक पर जा रहा है. and of course I am going. मैं भी जा रही हूँ. After a long tired project, I advised him go on a holiday. ठीक है, अब इतना आपने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट किया है, इतना लेंथी प्रोजेक्ट था, डे एंड नाइट वर्क किया है, ना यू आर टायर्ड,
तो आपको छुट्टियों पर जाना चाहिए, गो ऑन अ हॉलीडे, ठीक है। So when you are going on a holiday, you can enjoy the life. You can spend some memorable days somewhere else. So picnic and holiday, go on a. Now here are some other use of go. Collocations with go for. Go for. अब आप देखें for किसके साथ यूज़ होता है. Go for a meal. Go for a nap. Go for a swim. Go for a ride. Go for a rest. Go for a drive. Go for a hike. Go for a drink. Go for a run. Go for a coffee. Go for a jog. And go for a walk. So these are some words. Remember, go for a. Would you like to go for a walk with me? Because no one is interested to go with me. क्या आप मेरे साथ चहलकदमी पर जाना पसंद करेंगे? कोई मेरे साथ जाना नहीं चाहता. Go for a walk. Next is, can you go for a drive now? Can we go for a drive now? क्या हम ड्राइव पर चल सकते हैं? Because we are free, the weather is awesome. So I think we can go for a drive. हमें ड्राइव पर चलना चाहिए. We should go for a drive to enjoy this evening. How about going out for a meal tonight? आपका क्या ख्याल है आज रात बाहर खाना खाने के लिए? How about going out for a meal tonight? Next, beautiful weather and you are with me. Let's go for a coffee. Let's go for a coffee. Beautiful weather and you are with me. How lucky I am. इतनी प्यारी चीज़ें मेरे साथ हैं. So why don't we enjoy the weather and why don't we enjoy the company? So let's go for a coffee. चलें कॉफ़ी पर चलते हैं. So these are some sentences, these are some uses, and these are some common vocabulary which I shared with you, and I want you people to use the proper use of go. So don't mess up your sentences. तो अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लें और फिर इन वर्ड्स के साथ अपने सेंटेंसेस की खुद से प्रैक्टिस कर लें, देन आई एम श्योर कि आफ्टर few time you will be able to use correct use of go. So I think इस वीडियो के ज़रिए से आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी. अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर लें या आप कमेंट बॉक्स में कुछ सेंटेंसेस हमारे साथ शेयर कर लें, तो मेरा ख्याल है कि इट विल be good for you and it is a very good opportunity to learn about how to use go. So keep staying with us, keep learning. Thank you so much.